صبح و شام و تاریک تر، اور اس کی جو صبح ہوتی ہے وہ شام سے زیادہ تاریک تر ہوتی ہے۔ اب یہاں اقبال ایک ملت کے زوال کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ اقبال کے انہی اشعار کو آج کے دور میں دیکھیں تو امت اسلامیہ انہی اشعار کی عکاسی کر رہی ہے۔ دور دل شاہ آرزو ہے بے ثبات، مردہ زائند از بطون امہات۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسی ملت ہے اس کے نوجوانوں کے دل میں جو آرزویں وہ مر چکی ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور کوئی بھی آرزو اب پیدا کرنے کے لائق نہیں رہے، اور ایسی امت کا حال اس ماں کی طرح ہے جو کہ ایک مردے بچے کو جنم دے۔ یہاں اقبال اشارہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی جانب، جن سے انہوں نے ایک سمندر کو دو نیم کر دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، اور اس کے درمیان اللہ کے حکم سے ایک رستہ جاری کر دیا۔ تو اقبال اسی کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ہماری امت کو چوبے کلیم کی ضرورت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عصا بردار کی ضرورت ہے جو کہ اس امت کے حالات کو بدل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، ان التیاری حسبا یومن علی ارض الحرم، بلغ سلام روزتن فیہا النبی المحترم۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی نشست کا۔ ہماری آج کی نشست اس مبارک ماہ میں ایک انتہائی دلگداز نشست ہے۔ آج اس افراتفری کے عالم میں جب عالم اسلام کہ یہ ایک مشکلات کا شکار ہے اور دین کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کہ یہ ایک فرعونی قوتوں کا سامنا ہے، اس وقت ہماری یہ نشست ہمارے آج کے حالات کے مطابق ہے۔ میری مراد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مثنوی مسافر سے لی گئی آج کا موضوع ہے، جو کہ محیط ہے حکمت فرعونی پر۔ اس موضوع کا نام اقبال نے حکمت فرعونی رکھا، یعنی کہ فرعون کی حکمت، اور فرعون جو اپنے تمام تر اسباب اور کاموں کو بروئے کار لانے کے لیے جن باطل قوتوں کا استعمال کرتا ہے، یہاں فرعون سے مراد ہر وہ باطل اور بزدل حکمراں ہے جو اپنی قوت دکھانے کے لیے تمام ناجائز طریقوں کا استعمال کرتا ہے، اور اپنی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ بچے، بوڑھے اور عورتوں سبھی کو نیست و نبود کر ڈالتا ہے۔ تو اقبال اس سے پہلے اسی مثنوی کے باب میں حکمت کلیمی پر گفتگو فرما چکے ہیں، جس میں انہوں نے انبیاء کی نبوت کے اسرار و رموز بیان کیے، اور اب اس کے بعد والا باب جو کہ حکمت فرعونی کو محیط کیے ہوئے ہے، اس میں اقبال تمام تر باطل قوتوں سے پردہ اٹھائیں گے کہ وہ کس طرح اپنے کاموں کا سر انجام دیتی ہیں، اور بولے چہروں کو کس طرح اپنے ظلم و ستم سے اپنے شکار میں لے لیتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اقبال کے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج 2026 میں جن حالات کا سامنا امت اسلامیہ کو ہے، اقبال کی یہ مثنوی جو کہ آج سے کئی سال پہلے لکھی گئی، آج کی تصویر کشی کر رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس باب کا آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حکمت ارباب دی کردم میاں، حکمت ارباب کی راہم بداں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دین کی حکمتوں کو بیان کرنے کے بعد یہاں مراد اقبال کی اس سے پہلے والے باب سے ہے جس میں وہ حکمت کلیمی پر گفتگو کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں دین کی حکمتوں کا بیان کر چکا ہوں،
ए बेटा आ मैं अब तुझे जो हिकमत अरबाब की रहम बदा, जो मुनाफिक लोग हैं, जो फिरौनी और बातिल कुफ्ते हैं, उनके ऊपर से पर्दा उठाकर दिखाता हूं। तो इकबाल फरमाते हैं हिकमत अरबाब की मकरस्तफन मकरफन तहसीब जाता मीर तन। फरमाते हैं कि बेटा जो अरबाब की हैं, जो मुनाफिक और बातिल कुफ्ते हैं, उनकी हिकमत क्या है, वो अपने कामों को किस तरह सर अंजाम देते हैं। फरमाते हैं कि वो मकरो फन इख्तियार करते हैं। अब यहाँ इकबाल मकरो फन के लफ्ज लाए हैं, जिनका मफहूम कुछ यूं है कि वो उनकी तमाम तर तामीरात में, उनके हर एक काम में जो मुनाफकत होती है वो झलक रही होती है। उनके हर काम में मकर और फरेब पोशीदा होता है, जिनसे बोले चेहरे शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए फरमाते हैं कि मकर फन तहजीब जा तामीर तन। फरमाते हैं कि ये रूह को बिगाड़ते हैं जबकि तन को संवारते हैं। आज हम ईरान बमुकाबला इसराइल को देखें तो हमें यही चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। आज उम्मत इस्लामिया की जो बज़ाहिर सूरत है, उसमें जो रूह है उसको नेस्तो नबूद करने की कोशिश की जा रही है कि तमाम मुसलमान जो कि एक जंग की तरह हैं, वो मसालक की जंग में उलझकर अपने हकीकी दुश्मन से नाआशना रह गए। और यही वजह है कि आज वो हकीकी दुश्मन तमाम तर मुसलमानों को अपने जुल्म और सितम का शिकार बना रहा है। तो इकबाल इसी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जो बातिल कुफ्ते हैं, जो फिरौनी कुफ्ते हैं, वो क्या करती हैं कि वो रूह को बिगाड़ती हैं जबकि तन को संवारती हैं, जिस्म को संवारने में वो मददगार साबित होती हैं। यहाँ मुराद इकबाल की मगरबी निज़ाम से है, जहाँ इंतहाई फहाशी और बेहयाई बरोकार लाई जा चुकी है, जबकि रूह का निज़ाम वहाँ दरम बरम होकर रह गया है। तो इसके बाद फरमाते हैं हिकमत अज बंद दियाँ ज़्यादाए अज मकाम शौक दूर अफ्तादाए। तो इकबाल फरमाते हैं कि ये हिकमत फिरौनी क्या है, इसके जो बंद हैं, इसकी जो गिड़े हैं, जो रस्सी है वो दराज है, वो आज़ाद है। किससे आज़ाद है? इश्क और शौक से आज़ाद है। इसका इश्क के साथ कोई भी राब्ता नहीं, इश्क के साथ इसका कोई भी किसी किस्म का रिश्ता नहीं, जबकि जो रूह है उसका तमाम तर ताल्लुक इंसानी रूह के साथ है और अल्लाह और बंदे के साथ जो रिश्ता है वो रूह के साथ बंधा हुआ है। तो इकबाल उसी की जानिब इशारा फरमा रहे हैं। फिर लिखते हैं मकतबस तदबीर उगीरत निज़ाम तौबका में ख्वाजान दे शाह गुलाम। फरमाते हैं कि इसका जो मकतब है हिकमत फिरौनी का, वो क्या है कि वहाँ तमाम तर जो बसने वाले हैं इस जहां में, उनको गुलाम की तरह उनके साथ सलूक किया जाता है और एक आका जो कि अपनी बातिल सोच के साथ उन सब पर हुक्मरानी करता है और उन पर ज़ुल्म सितम ढाता है। शेह मिल्लत बादी से दिल नशी भर मुरादे कुन तजदीद दी। फरमाते हैं और इस मकतब का जो शेख है, इस मिल्लत का जो शेख है, वो भी उसी आका का गुलाम होता है और उसी की चिकनी बातें अवाम के यहाँ मकबूल करके उसकी मकबूलियत का बायस बनता है, उसकी शोहरत का बायस बनता है। जबकि इन तमाम तर बातों का दीन इस्लाम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। बर मुरादे कुन तजदीद दी, और जो तमाम तर तजदीदें दी हैं वो रुक कर रह जाती है ऐसी मिल्लत में, और यहाँ तक कि बातिल कुव्वतें अपने तमाम तर नजरियात को मासूम अवाम के जहनों में जहर की तरह भर देते हैं। अजदमे विहदते कौमे दो नीम कस हरीफश नीस्त जुज चौबे कलीम। फरमाते हैं कि जब इस तरह की वहदत कौम के अंदर नाबूद होकर रह जाती है और जो पायदारी है वो नापायदारी में बदल जाती है, तो क्या होता है? तमाम जो वहदत का निज़ाम है वो बिखर कर रह जाता है और उम्मत इस्लामिया का शिराजा पारा पारा हो जाता है। तो ऐसे वक्त में इकबाल फरमाते हैं कि कौन है जो इस उम्मत को दोबारा इनके पांव पर खड़ा कर सके। तो फरमाते हैं कस हरीफश नीस चौबे कलीम। फरमाते हैं चौबे कलीम यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोई असा लेकर आए और इस उम्मत को दोबारा इसके पांव पर खड़ा कर दे। यहाँ इकबाल इशारा फरमा रहे हैं
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक की जानिब, जिनसे उन्होंने एक समुंदर को दो नीम कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया और उसके दरमियान अल्लाह के हुक्म से एक रास्ता जारी कर दिया। तो इकबाल उसी की जानिब इशारा फरमा रहे हैं कि इस वक्त हमें, हमारी उम्मत को चोबे कलीम की ज़रूरत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे असा बरदार की ज़रूरत है जो कि इस उम्मत के हालात को बदल सके। इसके बाद लिखते हैं, वाए कौमे कुश्ता तदबीर गैर और तहजीब खुद तामीर गैर। फरमाते हैं कि वो कौम बड़ी ही बदनसीब है जो कि अपनी हालत पर गौर व फिक्र नहीं करती और जो कि तमाम तर जिंदगी दूसरों के अहकाम के मुताबिक जी रही है, उसकी सुबह शाम दूसरों के हुक्म के मुताबिक चल रही है, जबकि जो पाक परवरदिगार ने निज़ाम हयात उनको बख्शा और फितरती निज़ाम हयात से वो बिल्कुल दूर होकर रह गई है। क़ारिउ तहज़ीब खुद तामीर गैर। और ऐसी कौम क्या करती है कि अपने हाथों की तमीर अपने हाथों की बजाय करने की बजाय दूसरे बातिल अक़वाम के हाथों के जरिए करवाती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मी शवद्दर इल्म फन साहिब नजर अज वजूद खुद नगरदत बाखबर। फरमाते हैं कि उस इल्म का क्या फायदा जो कि बंदे को उसके वजूद ही से आशना ना करे और उसके वजूद ही से ना आशना करके रख दे। ऐसा इल्म उसके लिए मुफीद साबित होने की बजाय उसकी हलाकत का बायस बन जाता है। अज वजूद खुद नगरदत बाखबर। और ऐसी कौम जब ऐसा इल्म को अपनाती है तो वो अपने ही वजूद से बेखबर होकर रह जाती है। नक्श हकरा अज नगीने खुद सतर्द दौर ज़मीरश आरज़ूहा ज़ौद मर्द। फरमाते हैं कि ऐसी जो कौम होती है, ऐसी मिल्लत होती है जिसके ऊपर बातिल कुफ्तों और फ़िरऔनी अहकामात जारी होते हैं, वो क्या करती है, वो अपने दिल से अल्लाह ताला का नक्श मिटा देती है। वो नक्श जो कि अल्लाह पाक ने अपने बनाने वालों के दिलों पर रकम कर रखा होता है, जब वो बातिल कुव्वत के अहकामात को अपने दिल के ऊपर उतार लेती है तो वो अल्लाह ताला का नक्श उसके दिल से मिट कर रह जाता है। उसके ज़मीर से जो आरज़ुएं पैदा होती हैं वो भी कुछ देर के बाद मर जाती हैं, यहाँ तक कि उसका ज़मीर किसी आरज़ू का ख्याल अपने अंदर समोना ही बंद कर देता है। इसके बाद लिखते हैं, बेनसीब आमद अज औलादे गयूर जहाँ बतनचू मुर्दा दर खौ के गूर। फरमाते हैं कि ऐसी मिल्लत से गयूर बेटे पैदा नहीं होते। अब यहाँ इकबाल इशारा कर रहे हैं गयूर नौजवानों की जानिब, ऐसे नौजवान जिनका सीना कुरान हकीम के नूर से मुनव्वर होता है और जिनकी पेशानियां सजदों के निशान से मुनव्वर होती हैं। ऐसे गैरतमंद इंसान और मर्द जो कि बातिल कुफ्तों का तने तनहा मुकाबला कर लेते हैं और जिनके अंदर मौला अली शेर खुदा जैसी ताकत होती है और जिनका दस्त बातिल कुफ्तों को चीर फाड़ के रख देता है, इकबाल उन जवा मर्दों की जानिब इशारा फरमा रहे हैं। तो इसीलिए लिखते हैं, जहाँ बतन जो मुर्दा दर खौ के गोर। फरमाते हैं कि उनके जिस्मों में जहाँ इस तरह होती है जैसे कि किसी मुर्दे को कब्र के अंदर लिटाया हो। तो इकबाल एक ऐसे नौजवान की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि तमाम तर जिसका रहन सहन बातिल कुफ्तों के जेर साया हो चुका है और जिसने मगरबी निज़ाम को ओढ़ रखा है। इसके बाद लिखते हैं, औज़हैया बेगौना पैराने कोहन नौजवाना चूजना मशगूल तन। फरमाते हैं कि इस जो ऐसी जो मिल्लत होती है, बातिल मिल्लत जिसके ऊपर अहकामात फ़िरऔनी हिकमत के जारी होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके अंदर जो नौजवान होते हैं वो उनके तमाम तर मशागिल औरतों की तरह होते हैं और वो कौम की बेटियों की तरह सजना और संवरना शुरू कर देते हैं। तो इकबाल के इसी शेर को अगर हम आज के दौर में देखें तो हमारे सामने एक मंजर कशी हो जाएगी। तमाम तर नौजवान अपने बनाओ संगार में लगे हुए हैं, जबकि उम्मत इस्लामिया शदीद खतरात से दुचार है। इस वक्त बातिल कुफ्तें अपने तमाम तर मुहलिक हथियारों के साथ हमारे ऊपर नबरदज़मा हैं, जबकि तमाम इस्लामी मुमालिक एक दूसरे से खफा हैं और एक दूसरे का साथ देने से कासिर हैं। इस वक्त ईरान जो कि तने तनहा इस जंग में कूद चुका है और इस जंग की जो लिपटें हैं उसको अपनी लपेट में ले चुकी हैं, मगर वो तने तनहा इस मसल की जंग की वजह से
इन तमाम बातिल कुव्वतों का मुकाबला कर रहा है, जबकि तमाम दूसरे इस्लामी ममालिक उसी दुश्मन को, इसराइल को अपने हवाई अड्डे दे रहे हैं, अपने यहाँ बरी और बहरी इमदाद मुहैया कर रहे हैं। तो यहाँ इस शेर को जब हम देखते हैं तो वो नौजवान हमें वाकई मुर्दा दिखाई देते हैं, जिनको एक वहदत की कड़ी में परोकर इन तमाम तर बातिल कुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए था। तो इसी जानिब इकबाल इशारा फरमा रहे हैं। फिर लिखते हैं, दौर दिले शाह आरज़ू है बेसबात, मुर्दा ज़ाइंद अज़ बतूने उम्महात। फरमाते हैं कि ये जो ऐसी मिल्लत है उसके नौजवानों के दिल में जो आरज़ू हैं वो मर चुकी हैं, उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं और कोई भी आरज़ू अब पैदा करने के लायक नहीं रहे। और ऐसी उम्मत का हाल उस माँ की तरह है जो कि एक मुर्दे बच्चे को जन्म दे, एक मुर्दा बच्चे को जो जन्म दे, ऐसी माँ की तरह इस उम्मत का हाल हो चुका है। दुख तराने ऊ बजुल्फ़े खुद असीर, शोख चश्मो खुद नुमाओ खुर्दागीर। अब नौजवानों के जिक्र करने के बाद इकबाल इस बातिल मिल्लत की बेटियों का जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि ऐसी मिल्लत की औरतें किस तरह की होती हैं कि वो खुद नुमा और खुद असीर होती हैं। वो अपने हुस्न को वाजिया करने वाली, संवारने वाली और अपनी ही जुल्फों की असीर होती हैं। वो ऐसे बेटे पैदा करने से कासिर होती हैं जो कि बातिल कुव्वतों का तने तनहा मुकाबला कर सके। इकबाल इन्हीं उम्महात की जानिब इशारा करते हैं। फरमाते हैं, सौख्ता परदाख्ता दिल बाख्ता, अब रुआ मिसले दो तेगा खाख्ता। अब इकबाल यहाँ उन जनान, उन कौम की बेटियों की जानिब इशारा कर रहे हैं जो कि अपने हुस्न की असीर हो चुकी हैं और किसी भी फन को बरोकार लाने से कासिर हैं, जिनकी हया ख़त्म हो चुकी। तो इकबाल फरमाते हैं वो बड़ी बड़ी ठनी होती हैं, खुद को संवार कर रखती हैं और दिल बाख्ता होती हैं, दिल फेंक होती हैं, उनके अंदर से हया ख़त्म हो चुकी होती है। अबरुआ मिसले तो तेगा खाख्ता। फरमाते हैं कि उनके ये जो दो अबरू हैं वो तलवारों की तरह नौजवानों का शिकार करते हैं और इंतहाई किरदार कुशी की कैफियत होती है। उनका तमाम तर किरदार पाश पाश होकर रह जाता है। सौदे समीन शाह ऐशे नजर, सीन आए माही बमोज अंदर निगर। फरमाते हैं कि जब तू उनकी किलाइयों पर नजर डालेगा तो तू उनकी किलाइयों के हुस्न में इस कदर फरेफ्ता हो जाएगा कि तू अपने आप से आजाद हो जाएगा। तू पागल और दीवानों की तरह उनकी किलाइयों पर नजर जमाए खड़ा रहेगा। और ये इस तरह क्यों कर होगा? क्योंकि वो अपने हुस्न का इजहार कर रही होती हैं। सीधा माही बमोज अंदर निगार। फरमाते हैं कि तू उनको, उनके हुस्न की अगर मिसाल देखना चाहे तो एक मछली को लहरों के अंदर अपने सीने को डुबोए हुए तैरता देख ले। यही कुछ उन औरतों के ऊपर गुजर रही होती है। मिलते खाकस्तरे बेशरर, सुबह शाम तारीख तर। फरमाते हैं कि ऐसी जो मिल्लत होती है उसके अंदर किसी किस्म की चंगारी बाकी नहीं रहती और वो राख के ढेर की तरह अपनी जगह पर यकसू हो जाती है, जम कर रह जाती है। सुबह व शाम तारीख तर, और उसकी जो सुबह होती है वो शाम से ज्यादा तारीख तर होती है। अब यहाँ इकबाल एक मिल्लत के ज़वाल की जानिब इशारा फरमा रहे हैं। इकबाल के इन्हीं इशार को आज के दौर में देखें तो उम्मत इस्लामिया इन्हीं अशार की अक्कासी कर रही है। मुन अमाने ओ बखीलो ऐश दोस्त, व फलज मगजो अंदो अंदर बंदे पोस्त। फरमाते हैं कि जो ऐसी मिल्लत के हुक्मरान होते हैं वो कंजूस और इंतहाई दौलतमंद होते हैं। एक तो वो दौलतमंद होते हैं मगर दौलतमंद होने के बावजूद, अल्लाह ताला की नेमतें खाने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस होते हैं। और उनकी कैफियत क्या होती है कि वो हमेशा छिलके को अपनाते हैं जबकि मगज खाने से महरूम रहते हैं। यहाँ इकबाल छिलके का लफ्ज लाए हैं और मगज का लफ्ज लाए हैं। एक सूफिया के यहाँ जब वो मादी इल्म की मिसाल देते हैं तो वो छिलके का लफ्ज लाते हैं, छिलके की जानिब तशबीह देते हैं। जबकि जब रूहानी और दिल के अलूम का इजहार करते हैं तो वो मगज का इस्तेमाल करते हैं। मौला रूम के यहाँ छिलके, पोस्त और मगज को लेकर के ये एक अशार मिलते हैं। तो इकबाल अपने मुर्शिदे रूमी को पैरवी करते हुए उसी की जानिब इशारा फरमा रहे हैं कि ऐसे हुक्मरान की मिसाल
उस इंसान की मानिंद है जो कि छिलका तो खाए मगर मगज खाने से महरूम रहे। कुव्वत फरमारवा माबूदेओ दर ज़ियान दीन व ईमा सूदेओ, फरमाते हैं कि ऐसा जो हुक्मरान होता है वो तमाम तर बातिल कुव्वतों को अपना माबूद बना लेता है, जबकि दर ज़ियान दीन व ईमा सूदेओ, और जो दीन व ईमा में उसका फायदा होता है उसी को वो अपना नुकसान जान रहा होता है। उसका तमाम तर फायदा अपने वो मुस्तकबिल का, हाल का और माजी का अपनी दौलत में देख रहा होता है, ना कि दीन और ईमा को बचाने में। आज हद इमरोज खुद बेरून जस्त रोजगारश नक्श यक फरदान बस्त, फरमाते हैं कि वो अपने इमरोज यानी कि आज की खबर से बाखबर होता है, जबकि कल उसके ऊपर कौन सा वक्त आने वाला है इससे वो बेखबर होता है। आप देखें कि तमाम इस्लामी मुमालिक अपने आज को संवारने में लगे हुए थे और उन्होंने कई एक महल तामीर किए जिनके अंदर वो अपनी जिंदगी ऐशो इशरत के साथ बसर कर रहे थे, मगर वो इस चीज से नावाकिफ थे कि एक दिन आएगा यही बातिल कुव्वतें जो इनको महल बनाकर तैयार करके दे रही हैं, यही इनकी जान की दुश्मन बन बैठेंगी। तो इकबाल इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। अज नियागा दफ्तर अंदर बगल अल अमा अज गुफ्तहाए बेअमल, फरमाते हैं कि ऐसी मिल्लत अपनी बगल में अपने बुजुर्गों का दफ्तर उठाए फिरती है, उनके कारनामों की फहरिस्त उन्होंने बगल में दबाई होती है और उन्हीं के कारनामों को दोहरा दोहरा कर आने वाली नस्लों को एक वलवला और जज्बा दे रही होती है, जबकि आने वाली नस्लें उनके अंदर किसी किस्म का भी अमली नमूना नहीं पाती। तो इकबाल फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने इस्लाफ का तो जिक्र कर रहे हैं मगर खुद अमल पैरा होने से कासिर हैं, खुद अपने अंदर अल्लाह ताला के वो तमाम तर अहकामात को जारी करने से कासिर हैं। आह को मैं दिल जी हक पर दाख्ता मर्दो मरगे खेश रा न शनाख्ता, फरमाते हैं कि अफसोस ऐसी कौम से जिसने अपना दिल हक से हटा लिया है, जो मर चुकी है मगर अपनी मौत को भी नहीं पहचानती। तो इकबाल इसी के साथ अपने तमाम तर अशार का एहतताम फरमाते हैं और ये शेर उनका आखिरी शेर है। आह को मैं दिल जी हक पर दाख्ता मर्दो मरगे खेश रा न शनाख्ता, फरमाते हैं कि ऐसी कौम जो कि अपनी हालत को पहचानने से कासर है, वो मर चुकी होती है और वो अपने तमाम तर लवाजमात को, अपने तमाम तर सरगर्मियों को दूसरों के ऊपर डालकर अपनी तमाम तर जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उससे नबरदज़मा हो जाती है, उससे हाथ उठा लेती है। तो इकबाल इसी के साथ अपने इस बाब का इख्तिताम फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इकबाल की इन तालीमात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए